ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਡੌਗਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ नॉन एग्जिस्टेंस ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रीट करा जाऊगा। वहाँ पे 200 कुत्ते मरे हैं पिछले दो महीने में, ठीक है। सेकेंडली जो SPCA चल रहा है वो इलीगली चल रहा है, क्योंकि SPCA डेजिग्नेटेड शेल्टर नहीं है। हर जानवर को वहाँ जाके फेंक दिया जाता है और वहाँ पे जानवर मरता ही है। पिक्चर है जी कि कोई ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਤੰਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ होनी चाहिए थी, ਹੁਣ क्यों आ रही है? बैंगलोर नगर निगम सारे अपने डॉग्स के लिए एक मील दे रहा है पर डे। सेकेंडली अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया। आपको डॉग बिहेवियर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स बाय लॉ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नहीं हुआ है चंडीगढ़ में। जजेस ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, वेरीफाइबल डेटा के बेसिस पे तुसी जेडे डायरेक्शंस हैं उन्हों पास करो। वेरीफाइड बाइट होना चाहिए, अनप्रोवोक्ड बाइट होना चाहिए, रिपीटेड बाइट होना चाहिए। इन 3 चीज़ों के बिना कोई डॉग नहीं उठा सकता। लेकिन ये तो अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी जाके उठा लेते हैं। एनिमल के ऊपर क्रुएल्टी दिखाई जाती है, बहुत ही दरिंदगी से मारा जाता है किसी से। लॉ में इनकी सजा भी होगी फिर? जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो पुलिस है, और पुलिस अपना काम भी नहीं करती है। पुलिस दर्ज FIR करने में इतने उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, इतना उनका सर खपाना पड़ता है। SHO को फोन करो, SSP को फोन करो, जब तक बात कमिश्नर तक नहीं जाती। हम लोग कमिश्नर तक गए हैं, पुलिस कमिश्नर तक, तब जाके FIR होती है। सरकार अपना काम नहीं करती, पुलिस अपना काम नहीं करती। सामाजिक लोग पे लोग इनको बेजुबानों को तड़पाते हैं और फिर बोलते हैं कुत्ते की आतंक। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ NGOs ਨੇ, ਕਈ ਫੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਲਾਇਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੌਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਐਫਰਟਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੌਗਸ ਆਰ ਅ ਮੈਨਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਪਾਉਂਡਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਟੈਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ from the last 2 years ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਡੇਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ।
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਡੌਗ ਪਲੇਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਤਾ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੋ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ, ਨੋ ਮਾਰੇ ਨੋ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਕੀ ਕੱਟ ਲੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋ ਬਾਈਟ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟ ਡੌਗ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਸਟਾਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਮੰਥ ਔਨ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ 100 ਵੈਕਸੀਨਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆਏ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੇयर। ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਜੀ dogs are a menace, dogs have been existing in this country since very long, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ we should question the state. ABC rules ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਏ ਹੈ, they are existing since 2001। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਨ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਜਿਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਸ਼ਿਮਲਾ, they have enforced ABC rules। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ABC rules ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ that is on CSVR, capture, sterilize, vaccinate, release। ਇਹ WHO ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹੈਲਥ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ABC ਰੂਲਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ that it is internationally the best framework to achieve animal welfare, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਹ this is a self-casted blot on the Supreme Court's very own rich history of compassionate jurisprudence। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ABC ਸੈਂਟਰ ਹੈ, that is for the purposes of vaccination and sterilization, ਤੇ SPC ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ, no designated shelters ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, dogs are not meant to be put into shelters or pounds। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, since so long, I will repeat, dogs have been a part of us। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾ ਜਾਊਗਾ? ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਤੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ, ਜਸਟ ਵਨ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਹਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ चंडीगढ़ ने। SPC है। that is सो मैडम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बेजुबानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, आपके दिमाग में ये चीज़ कब आई कि मैंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है? क्योंकि हमने सुना आप लगातार कैंपेन्स कर रहे हो, लोगों को अवेयर करने का काम को। आप मानते हो कहीं ना कहीं फैमिली भी इन्वॉल्व है, बच्चों के दिमाग में बैठाया जाता है
कि वो जानवर है और वो आपके लिए हार्मफुल है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक सोशल लेवल की भी इशू है, क्योंकि सोशल लेवल पे लोगों जैसे इन्होंने बताया, मीडिया ने जब इनको आतंकी बुला दिया। आतंक कौन होता है? आतंकी तो आतंकवादी होते हैं। कुत्ता कब से आतंकी हो गया? आप बताइए। डॉग बिहेवियर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे पुरखों को ज़्यादा थी, हमारे दादाजी को ज़्यादा थी, दादा नाना हमारे माता पिता को ज़्यादा थी। लेकिन अब जाके लोगों के दिमाग में ये आतंक इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि जैसे एक तो पॉपुलेशन की बढ़ी, क्योंकि ये फेलियर है, ये नगर निगमों का फेलियर है। कानून देश में बना है, 25 साल हो गए हैं एबीसी रूल्स को, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपने ग्राउंड पे जाकर ये सब कुछ देखा था? हाँ जी, मैं खुद फीडर भी हूँ। मैंने अपने सेक्टर में 20 से 25 कुत्तों की नसबंदी खुद कराई है, प्राइवेटली कराई है, क्योंकि गवर्नमेंट जगह में तो वो तो मर ही जाएंगे, वहां तो करा भी नहीं सकते। एक आदमी ने मेरे को एक पैसा नहीं दिया मेरे सेक्टर में, किसी ने नहीं दिया। नहीं देते लोगों को, कोई फर्क नहीं। और उन्हीं वही लोग इनको बोलते हैं कि कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता बेकार से कभी नहीं काटता। डॉग बाइट बिना वजह के कभी नहीं होता। अब आप देखेंगे गलियों में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि काम वाली को काट लिया या इसको काट लिया, लेकिन वही कुत्ता बाकी सेक्टर के जो उसको प्यार करता है या उसको छेड़ता नहीं है, उसके पास दुम हिलाएगा। हमारी अपनी गली में लोग बोलते हैं कि तुझे कुत्ते क्यों नहीं काटते? मैं किसी भी जगह चल जाऊं, मुझे मजाल है कभी कुत्ते ने काटा हो, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो उनको अपनी प्यार भरी भाषा, इंसानियत के तौर पे देखते हैं। डॉग्स एनर्जी देखते हैं, आदमी का वो एनर्जी पढ़ पाते हैं। उनको भी कोई थ्रेट लगता है, कोई नहीं लगता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उनका रोज उनके लिए स्ट्रगल है, जीना स्ट्रगल है। अगली रोटी कहाँ से मिलेगी? पानी कहाँ से मिलेगा? ठंड में रात को कांप रहे हैं, गर्मी में पानी हम इतनी 45 डिग्री में तरसते हैं पानी के लिए, उनको बूंद नहीं मिल रही, पेट भी नहीं भरा। सोचिए उसका दिमागी हालत क्या होगी इस बेचारे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस चीज को लेकर कुछ कर नहीं रही? हाँ जी, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट हमने ये सारा जो आज हमारा प्रोग्राम रहा है वो इसलिए रहा है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नगर निगम के तौर पे एबीसी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ढंग से इन्होंने नहीं करी, और जो करी है, जैसे वकील साहब ने बताया, अभी के टाइम में इनके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, इलीगल है। वहाँ पे 200 कुत्ते मरे हैं पिछले दो महीने में, ठीक है। सेकेंडली जो एसपीसीए चल रहा है वो इलीगली चल रहा है, क्योंकि एसपीसीए डेजिग्नेटेड शेल्टर नहीं है। हर जानवर को वहां जाके फेंक दिया जाता है और वहां पे जानवर मरता ही है। नंबर 2, जो इनके सर्कुलर्स आते हैं, ऑर्डर्स, इनके बायलॉज निकले हैं अभी, वो एबीसी रूल्स के विपरीत है। कुछ सेक्शंस है जो इलीगल है, ठीक है। और इन्होंने इलीगली इतने पिकअप्स किए हैं अग्रेसिव के नाम पे। एक फोन पे वो जाके गाड़ी आती है, डॉग का ना वो वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करती है, ना स्टरलाइजेशन स्टेटस चेक करती है, ना वेरीफाई करती है कि डॉग बाइट उसी डॉग से था। किसी की भी नॉर्मल फोन कॉल पे वो जाके कर लेते हैं, तो ये इलीगल है, ठीक है। सेकेंडली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक्निकली नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एबीसी रूल्स में हर डॉग को खाना के देने के लिए भी है। बैंगलोर में प्रोग्राम चल रहा है, बैंगलोर नगर निगम सारे अपने डॉग्स के लिए एक मील दे रहा है पर डे। सेकेंडली, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया। आपको डॉग बिहेवियर, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स बाय लॉ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नहीं हुआ है चंडीगढ़ में। और फिर ये तानाशाही तरीके से जो ऑर्डर्स और सर्कुलर्स निकाल रहे हैं वो इलीगल है, वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है, और अभी कानून के अगेंस्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एनिमल एक्ट के अगेंस्ट है। तो सफरिंग सिर्फ इंसानों की होती है। और जैसे आपने कहा सामाजिक तरीके का प्रॉब्लम है, जी है। आजकल माएँ अपने बच्चों को बोलती है कुत्ते से दूर भागो, पत्थर उठाओ, डंडा उठाओ। अगर आपके हाथ में डंडा पत्थर होगा तो कुत्ता आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग और कोई नहीं है, हम ही में से वो लोग होते हैं जो देखकर कुत्ते को पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं। और बाहर से तो आते नहीं वो लोग, कहीं ना कहीं लोगों को भी समझने की जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ, एक फटाफट एग्जांपल बताती हूँ। एक केस था एक सेक्टर में, जो लोगों ने बोला कि वहाँ पे आतंक फैला हुआ है। 4 गलियों की बात है, वहाँ 6 कुत्ते थे, उन्होंने बोला सब तंग कर रहे हैं। हम पहली बार उस गली में गए, उन्होंने बोला इतने एग्रेसिव डॉग की अभी देखे नहीं होंगे। हम पहली बार उस गली में गए, हमको तो कुछ नहीं बोला, हम भी 6 लोग थे। वो अग्रेसिव नहीं है। अग्रेसिव डॉग वो होता है जो सबके लिए अग्रेसिव है, आपके लिए, मेरे लिए, आने वाले चलने वाले आदमी के लिए। वो अग्रेसिव, मेंटली ठीक नहीं हो, शायद रेबीज हो, रेबीज वाला कुत्ता ही अग्रेसिव होता है। अगर उसको रेबीज नहीं है तो वो नॉर्मल है, उसको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो अग्रेसिव आप डिफाइन नहीं कर सकते, और एबीसी रूल्स 2023 में अग्रेसिव समझाया गया है कुछ हद तक। वेरीफाइड बाइट होना चाहिए, अनप्रोवोक्ड बाइट होना चाहिए, रिपीटेड बाइट होना चाहिए। इन 3 चीजों के बिना कोई डॉग नहीं उठा सकता। लेकिन ये तो अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी जाके उठा लेते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो
कह लो कि एनिमल के ऊपर क्रुएल्टी दिखाई जाती है, हाँ जी, बहुत ही दरिंदगी से मारा जाता है किसी से, लॉ में इनकी सजा भी होगी फिर? लॉ में इनकी सजा है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इनके अगेंस्ट जो एक्ट है, सबसे पहले तो वो बहुत वीक है, बहुत बहुत वो सख्त नहीं है, उसको बदलने की भी जरूरत है। वो संसद बदलेगा, वो सांसद का काम है, वो लोकसभा का काम है। ये बिल बन भी चुका है, अमेंड हो चुका है, सांसद ने पास नहीं किया। तो मैं सांसद को ये भी बोलूंगी, हमारे सांसदों को, पूरे लोकसभा के हमारे सांसदों को, इसको बदलिए। लेकिन जो है अभी कानून है, आप नहीं कर सकते, ये क्राइम है। किसी कुत्ते को तंग करना, मारना, कत्ल करना, रेप करना, ये और ऐसे केसेस हैं। हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ चंडीगढ़ में पिछले 2 महीने में हमारे पास ऐसे 12 केस हैं। सजा कितने महीने तक की हो पाती है इनको? देखिए, इनको अगर कॉग्निसेबल ऑफेंस है तो आपको जेल हो जाती है, अगर नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस है तो आगे बढ़ता है। लेकिन उसको आपको पुलिस का बहुत जरूरी रोल है। जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो पुलिस है, और पुलिस अपना काम भी नहीं करती है। पुलिस दर्ज एफआईआर करने में इतने उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, इतना उनका सर खपाना पड़ता है। एसएचओ को फोन करो, एसएसपी को फोन करो, जब तक बात कमिश्नर तक नहीं जाती। हम लोग कमिश्नर तक गए हैं, पुलिस कमिश्नर तक, तब जाके एफआईआर होती है। और एफआईआर अगर होती है उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो ये पूरा सिस्टमिक फेलियर है, ये सिस्टमिक ब्रेकडाउन है। सरकार अपना काम नहीं करती, पुलिस अपना काम नहीं करती, सामाजिक लोग पे लोग इनको बेजुबानों को तड़पाते हैं और फिर बोलते हैं कुत्ते की आतंक। तो ये इसको कहते हैं इनजस्टिस। और इतनी इनजस्टिस जब तक चलेगी, और आप सुमोटो कॉग्निसेंस केस की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे लिया, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे लिया है, और उसमें प्रूव हुआ है डॉक्टर की रिपोर्ट से कि वो लड़की डॉग बाइट से नहीं मरी थी, मेनिंजाइटिस से मरी थी। वो तो 50 लाख के तकरीबन। हाँ, पर जिस लड़की की मौत को 2 कुत्तों ने उसको पकड़ के काटा था, उस लड़की की मौत मेनिंजाइटिस से हुई थी, रेबीज से नहीं हुई थी। और हमारे माननीय कपिल सिब्बल जी, अभिषेक सिंघवी जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, उन्होंने खुद आंकड़े दिखाए दिल्ली को कि डॉग बाइट दिल्ली में पिछले 5 साल में 3 या 4 है, पता नहीं कितना छोटा आंकड़ा था। तो आंकड़े दिल्ली सरकार एमसीडी गलत दिखाती है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो दिल्ली सरकार से बहुत ही छोटी है। तो सोचो क्या क्या चल रहा है इस देश में, झूठे आंकड़े, अनवेरिफाइबल क्लेम्स, अनवेरिफाइबल बाइट्स, इलीगल फैब्रिकेटेड अग्रेशन ऑफ डॉग्स दिखाना, ऊपर से जो केयर गिविंग में आपको गारंटी देते हैं, अगर आप कुत्ते को खाना पानी दे दो, उसके सर में एक बार हाथ लगा दो, वो कभी जिंदगी में नहीं काटेगा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਸੀਗੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਕਟ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੋਟੀ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਕ ਪੋਸਟ।